So, continuing from page 118. So, we discussed basically, we were discussing something. Let's see what we were discussing. Yes, सो वी वर डिस्कसिंग कि जिस तरह से एक शहद की बरनी पर शहद है खूब सारा अंदर, लेकिन एक जो मधुमक्खी है वो उस शहद का आस्वादन किस प्रकार करने का प्रयास कर रही है। बाहर से उसको चाट रही है वो। तो क्या वो कभी शहद का आस्वादन कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह से ये जो भी इम्पर्सनलिस्ट वगैरह है, छायावादी का मायावादी कायावादी, ये इस तरह की भगवत गीता की व्याख्या करते हैं जिस वजह से वे कभी भी भगवान भगवान के प्रेम का सुख कभी अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। तो ये बात हमने डिस्कस की थी। ऑल राइट, आगे देखते हैं अब हम। आगे हमने डिस्कस किया था कि कैसे अभय को भक्ति वेदांत टाइटल मिला था। अब आगे देखते हैं। सितंबर 3, 1939, लॉर्ड लिनलिथगो, Vizier of India, announced that India was at war with Germany. भारत और जर्मनी के बीच में वॉर हो रहा था। Thus England swept India into the war without consulting any Indians. Although independence minded India certainly resented such a show of foreign control, there were mixed feelings about the war. India wanted independence, yet she emphasized with the Allied cause against fascism in the West and feared an invasion by Imperial Japan in the East. Since you dislike the British so violently, one author asked a typical New Delhi student of the day, what do you want? Japan to invade and conquer India? Student, no. But we Indians pray that God may give the British enough strength to stand up under the blows they deserve. Although at the outbreak of the war, India had only 175,000 men in her armed forces, the British managed to increase the number of Indian soldiers to 2 million. There was no draft, but the British sent recruiting agents all over India, especially in the Punjab, where military service seemed an attractive offer to the local poor. The Punjabis proved good fighters, whereas Bengalis enlisted as officers, doctors, contractors, and clerks. Indian soldiers were dispatched to battlefields in Egypt, Iraq, Syria, Persia, Malay, Burma, and Assam. आसाम? क्या आसाम भारत में नहीं है? हम कंफ्यूज्ड। वेयर इज आसाम? ओके है, ठीक है। While the British were attempting to mobilize Indians for the war, the Indian nationalist movement, which had continued off and on for more than 20 years, became very active. Members of the Congress party refused to cooperate with the war effort and demanded guaranteed independence for India. Some thought that since England had her hands full with Germany, the time was ripe to revolt and gain independence by force. Gandhi's position had been one of unconditional pacifism, and he had opposed the India of Indians taking up arms, even to defend India. But by 1942, he had become more inimical and had reduced his policy towards the British to a simple, unequivocal quit India. Thousands of Indians responded by chanting slogans in the street and even by tearing up the railway lines. मैं एक बार पूरा पढ़ देती हूँ
वॉर में मुझे पता है आप सबको इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा मेरी तरह। वो पूरा पढ़ के मैं आई टेल यू इन द स्टोरी, इन द समरी। Abhay's militant former schoolmate Subhash Chandra Bose fought against the British in his own way. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। 1939 3 सितंबर की बात है। अब क्या हुआ था, भारत और जर्मनी में वॉर हुआ, जिसमें क्या हुआ, जो इंग्लैंड के लोग हैं उन्होंने धोखेबाजी से अचानक से वॉर छेड़ दिया। एक मिनट, वॉर को हिंदी में क्या बोलते हैं? युद्ध। यस, जंग। तो इन्होंने युद्ध छेड़ दिया बिना बताए, धोखेबाजी से। तो अब आगे जाके क्या हुआ, यहाँ पर जो भारत के लोग थे वो थोड़े इंडिपेंडेंस माइंडेड थे, मतलब स्वतंत्र थे, अपने मतलब खुले विचार के लोग थे। तो इस वजह से उन्होंने, सब लोगों की मिक्स्ड फीलिंग थी इस युद्ध के प्रति। भारत को मतलब भारत को आजादी चाहिए थी, स्वतंत्रता चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो, ये जो बाहर के जो भी ये देश है उससे थोड़ा भय भय था, मतलब भारत को, मतलब भारत के लोगों को। तो आगे जाकर कोई उनसे पूछता है कि, किसी न्यू दिल्ली में से किसी बच्चे को कोई व्यक्ति पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि जापान जो है वो भारत से युद्ध जीत जाए? तो उस बच्चे ने कहा कि नहीं, बच्चा मतलब कोई बड़ा व्यक्ति होगा, उसने कहा नहीं, लेकिन हम भारतीय लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें ऐसी क्षमता दे, ऐसी बुद्धि दे, ताकि वो काम करे जिसको वो वास्तव में डिजर्व करते हैं, जिसके वो वास्तव में लायक है। नाउ आई डोंट नो व्हाट डज दैट मीन। फिर आगे जाके पता लगता है कि यहाँ भारत की साइड में 1,75,000 सेना थी, और यहाँ पे जो ये पाश्चात्य देश के जो लोग थे, इनके पास में इनसे 2 मिलियन ज्यादा सेनाएं थी। तो इस तरह से बाद में उन्होंने क्या किया, मतलब भारत के लोगों को ही वो अपनी पार्टी में करने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ भारत में जो पंजाबीज हैं उनको गुड फाइटर्स माना जाता है, और यहाँ बंगालीज जो है भारत में ही, वो कुछ डॉक्टर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, क्लर्क्स वगैरह है। तो इस तरह से पार्टीज बट रही थी। ठीक है, अब आगे जाकर जो गांधी जी हैं उनकी भी ऐसी कुछ, उनकी क्या पोजीशन थी कि वो शांति चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कुछ भी हिंसा वगैरह हो या ये युद्ध लड़ाई झगड़े वगैरह हो। मतलब स्वतंत्रता वे चाहते थे, पर वो चाहते थे कि शांति से काम हो जाए। तो उन्होंने शांति से समझौता करने के लिए, कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको कहा भी कि आप भारत छोड़ दीजिए। और इस तरह से बहुत सारे जो भारतीय लोग थे वो नारेबाजी कर रहे थे। और नारेबाजी आप जानते ही हैं, जिस तरह से लोग इकट्ठे होकर बोलते रहते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए। जो रेलवे स्टेशन वगैरह, रेलवे लाइंस वगैरह होती है, वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से सारा माहौल हो रहा था। Abhay's militant former schoolmate Subhash Chandra Bose fought against British in his own way. He had approached Hitler in Germany and gotten him to agree that when the Germans captured Indian soldiers, Germany would return them to Bose, who would maintain them in his nationalist army. With this army, Bose planned to return to India and drive the British from Indian soil. But dissatisfied with his progress in Germany, Bose made similar agreement with Tojo in Japan. And soon thousands of Gurkhas and Sikhs, the best fighters in the Indian army, had defected from the British army to join Bose freedom fighters in Singapore. Bose began to prepare his army to invade India from the north. अब यहाँ जो सुभाष चंद्र बोस थे, अभय के स्कूलमेट, वो कुछ और ही प्लानिंग कर रहे थे। वो अपने हिसाब से
लड़ना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स से। तो उन्होंने पहले जर्मनी के जो हिटलर है उनसे कुछ संवाद किया, पर वो फेल हुआ। तो आगे जाके उन्होंने जापान के, जापानी है ना, हाँ, जापान के तोजो कोई व्यक्ति है उनसे कुछ संवाद किया। फिर आगे जाके जो भारत के गुरखाज और सिख्स हैं, सिख वगैरह, जो बहुत इंडियन आर्मी में बहुत अच्छे होते हैं फाइट करने के लिए, वो इस तरह से इकट्ठे किए गए। और इस तरह से वो मतलब प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से ये जो ब्रिटिश आर्मी है इनको हराना है। देन इन 1943 द ब्रिटिश फाउंड, मुझे पता है ये हिस्ट्री थोड़ी बोरिंग होती है, पर पढ़ लेते हैं, अब यहाँ पर है तो क्या करें। Then in 1943, the British found that the Japanese who had already taken Burma were at the doors of India. Burma is a country, इसकी बात हो रही है, approaching Bengal. By their tactic known as the denial policy, the British sank many Indian boats carrying food and destroyed large rice crops, fearing that they would fall into the hands of the enemy. अब आगे जाके क्या होता है, जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने क्या पाया कि ये जो जापानीज है, जिन्होंने बुर्मा को अंडर में लिया हुआ है, अब वो इंडिया को भी अपने अंडर में लेने वाले हैं बंगाल के थ्रू। तो अब उनकी ये जो शर्ट मतलब एक साजिश जो होती है कि मतलब युद्ध के लिए मना कर देना, वो सोचा उन्होंने कि हम इस तरह से करेंगे। मतलब ये वो लोग युद्ध के लिए मना कर दे, ये जो भी है भारतीय लोग वगैरह, इसके लिए ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, जो नावों की नाव थी जिसके अंदर बहुत सारा अनाज वगैरह था, उन सबको उन्होंने डुबा दिया पानी के अंदर। क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो हमारे शत्रु हैं ये सब एक हो जाएंगे तो भाई हम तो कमजोर पड़ जाएंगे। दिस लेफ्ट लोकल इंडियंस स्टार्विंग इन विदाउट द बोट्स दे नीडेड फॉर ट्रेड। The famine that ensued was the worst that had hit Bengal in 150 years. The government removed all control of food costs, and those who would not afford to buy the skyrocketing prices died in the streets of Calcutta. अब लोग वहां भूख से तड़पड़ा रहे थे, पूरा अनाज उन्होंने इस तरह से बहा दिया, और जो नावें थी वो भी बह गई, अब व्यापार भी वो नहीं कर सकते थे। तो जिस वजह से बहुत मतलब नुकसान हुआ। और गवर्नमेंट ने सारा जो फूड कॉस्ट पे जो कंट्रोल था वो हटा दिया था। तो अब जो खाने को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो बेचारे सब भूखे मर रहे थे वहां कैलकाता में। श्रीला प्रभुपदा, आई हैव गॉट एक्सपीरियंस, द गवर्नमेंट क्रिएटेड आर्टिफिशियल फेमाइन। एक मिनट, इसका मतलब देख लेते हैं। ठीक है, फेमाइन मीन्स शॉर्टेज, स्केर्सिटी। तो ये जो गवर्नमेंट है ये क्या करती है, ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज करती है। इसका अर्थ क्या है, देखिए, गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी स्टॉक में बहुत सारा सामान रखा होता है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकालती है। तो श्रीला प्रभुपाद इस तरह से बता रहे हैं दैट ही गॉट दिस एक्सपीरियंस, कि ये लोग आर्टिफिशियली शॉर्टेज क्रिएट करते हैं कि भाई खाने की कुछ कमी है, ये है वो है, खुद ही अपने पास में स्टोर रखेंगे पर बाहर नहीं निकालते। The war was going on, so Mr. Churchill's policy was to keep the people in scarcity so they will volunteer to become soldiers. तो अब वहां पर वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो जो मिस्टर चर्चिल थे उनकी साजिश क्या थी कि वो लोगों को इस तरह से स्कैरसिटी में रखेंगे, मतलब खाने पीने की, जो भी क्या बोलते हैं उसको, वर्ड्स मुझे याद नहीं आते, स्कैरसिटी, कमी, अनाहार, अकाल। तो इस तरह से ये लोग
लोगों को इस तरह से अनाहार या कमी में रखते हैं ताकि वो उनकी पार्टी में होकर उनकी मदद करे। ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा कि किसी को भी अपने अंडर में लेना है तो उसकी नस दबाना चाहिए, तब वो अपने कंट्रोल में आता है। उसकी जो भी कमजोरी है उस पर आ, उस पर उसको उसका नस दबानी चाहिए ताकि वो कंट्रोल में आए। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये लोग कर रहे थे, इनकी पॉलिसी ये थी। So this policy was executed. Big men, they collected the rice. Rice was selling at 6 rupees per mound. All of a sudden it came to 50 rupees per mound. 6 rupees से 50 rupees. I was in the grocer shop purchasing, and all of a sudden the grocer said, "No, no, I'm not going to sell anymore." At that moment, the price was 6 rupees per mound. So suddenly he was not going to sell. A few hours later, I went back to purchase, and the rice had gone up to 50 rupees per mound. The government appointed agents began to purchase the rice and other commodities which are daily necessities. They can offer any price because the currency is in their hands. They can print so called papers $100 and pay. A man becomes satisfied thinking, "Oh, I have $100, but it is a piece of paper." तो क्या बताया जा रहा है कि श्रीला प्रभुपादा दुकान पर ही थे, ग्रोसरी की, जहां पर अचानक से वो जो दुकानदार है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं अब इसको नहीं बेचने वाला हूं। उस समय जो प्राइस थी वो थी 6 रुपीस पर माउंड। मुझे नहीं पता ये कौन सी करेंसी है, पर माउंड मतलब मान लीजिए किलो होगा, शायद किलोग्राम। लेकिन अब अचानक से वो उसको नहीं बेच रहा था, और कुछ घंटों बाद ही जो प्राइस थी वो क्या हो गई थी, वो 50 रुपीस पर माउंड हो गई थी चावल की। तो ये गवर्नमेंट के एजेंट्स थे जो इस तरह से चावल और दूसरी जो भी डेली की जो भी नेसेसिटीज होती है, जो मतलब व्यक्ति को चाहिए ही, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, होती है काफी सारी चीजें जो हमें नियमित रूप से चाहिए ही होती है। तो उस पर ये लोग बहुत उस पर महंगाई कर रहे थे। कुछ भी प्राइस वो ऑफर कर सकते थे क्योंकि जो करेंसी थी वो उनके हाथों में थी। प्रभुपाद जिस तरह से कह रहे हैं that they print so called papers $100 and pay, और जो व्यक्ति है वो संतुष्ट हो जाता है ये सोचकर कि वाह मेरे पास में $100 है, लेकिन वो सिंपली एक कागज का टुकड़ा होता है। जैसे आप देखेंगे पाश्चात्य देशों में, मतलब आई रियलाइज इट फ्यू मंथ्स अगो, जब वो जो व्यक्ति लॉस एंजलिस में रहते हैं, मुझे उन्हें जपमाला और कुछ प्रभुपाद जी की पुस्तकें भेजनी थी, तब मुझे पता लगा कि जो पाश्चात्य देश है वो कितना महंगा है। क्या था, दो पुस्तकें थी, एक तो कृष्णा बुक और एक पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, दो किताबें थी, और एक जप चैंटिंग बैग था और एक चैंटिंग बीड्स थी, बस ये चार चीजें। और इसका जो प्राइस था वो डॉलर्स में उन्होंने कुछ बताया था, जिसको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो उसका प्राइस आएगा 6000 रुपीज। एंड आई वॉज इन शॉक है, ये चार चीजों का प्राइस 6000 रुपया। आप सोचिए यहाँ पर हार्डली कितने की आएगी ये चीज, 500 रुपए में भी नहीं आएगी। 500 भी पता नहीं, इतने की आती है। चैंटिंग बीट्स कितने की आती है, ज्यादा से ज्यादा 30-40 रुपए की, और चैंटिंग बैग भी इतने का ही आता है। और पुस्तकें भी इतनी कुछ महंगी तो आती नहीं है। पर वहां जब मुझे पता लगा, डॉलर्स में तो उन्होंने कुछ बताया था, $24 या ऐसा कुछ ही था, पता नहीं, नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट प्राइस। लेकिन बाद में उसको जब कन्वर्ट किया इंडियन रुपीज में तो वो 6000 रुपीज कुछ था। वो तो भगवान की कृपा से वहां पर ही कोई भक्त मुझे मिल गए, तो उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया था। बट दिस इज लाइक टू मच, मुझे नहीं पता था। So yes, Srila Prabhupada is saying that it is piece of paper.
That was the policy. You have no money, no rice. So another avenue is open. Yes, you become a soldier. You get so much money. People out of poverty would go there. I have seen it. No rice was available in the market and people were hungry. They were dying. तो इस तरह से बताया जा रहा है कि ये उन लोगों की पॉलिसी थी। तुम्हारे पास में पैसा नहीं है तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। तो अब दूसरा तुम्हारे पास में ऑप्शन क्या है कि तुम हमारी पार्टी में आओ, तुम सेना, तुम मतलब सेना नहीं, मतलब पार्टी में, मतलब समझ रहे हैं आप कि जो पर्टिकुलर देश है उस देश के लोग ही, हर कोई तो अब युद्ध में नहीं लड़ रहे ना, क्योंकि हर कोई तो योद्धा नहीं होता है। तो अब ये जो साधारण से लोग थे जिनको कुछ युद्ध वुद्ध आता नहीं है, तो ये लोग चाह रहे थे कि ये भी युद्ध करे। तो उनसे जबरदस्ती युद्ध कराने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी आजमाई कि ये खाने पीने को उनकी शॉर्टेज कर दिया जाए। तो आगे क्या बोलते हैं कि ठीक है, एक तुम युद्ध करो और तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो लोग किसके कारण इस तरह से, गरीब मतलब जो भी उन आ रही थी गरीबी के कारण, अब उनको वहां पर जाना पड़ता था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आई हैव सीन इट, मैंने खुद ने देखा है कि बाजार में चावल नहीं था, खाने को लोग नहीं था, खाने लोग भूखे थे और भूखे मर रहे थे वास्तव में। Abhay managed to purchase just enough for his own family to survive. But he saw the beggar population increase by the hundreds. Month after month, he saw the footpaths and open spaces congested with beggars cooking their food on improvised, improvised stoves and sleeping in the open or beneath the trees. He saw starving children rummaging in the dustbins for a morsel of food. तो इस तरह से बता रहे हैं कि अब है, उन्होंने कुछ मतलब कुछ ना कुछ मैनेज करके वो इतना तो परचेज कर पा रहे थे कि उनके मतलब पूरे घर वाले आराम से खा ले। लेकिन उन्होंने देखा था कि बाहर सड़कों पर जो भिखारी लोग हैं, मतलब अब देखिए कोई सामान्य से व्यक्ति भी है, वो बेचारा खाना पीने को उसको नहीं मिल रहा है, तो वो भी भिखारी हो जाएगा ना। भिखारी कौन होता है? जिसके पास रहने को घर नहीं होता, खाने को खाना नहीं होता। तो इस तरह से अब भिखारियों की पॉपुलेशन बढ़ रही थी हजारों की तादाद में। महीने, मंथ आफ्टर मंथ, हर महीने महीने क्या हो रहा था, जो फुटपाथ है बाहर वो बहुत कंजेस्टेड हो रहे थे, मतलब बहुत भीड़ हो रही थी बाहर। लोग बाहर ही अपना खुले में ही गंदी संदी जगह पर पका रहे थे। जैसे आपने देखा ही होगा ना, बाहर रोड पर लोग फुटपाथ पर लगा लेते हैं अपना कुछ भी वो तिरपाल सा, और वहीं पर वो बनाते रहते हैं। तो इसी तरह से लोगों की हालत हो गई थी, बाहर खुले में ही सो रहे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ के नीचे सो रहे थे, इस तरह से हालत हो रही थी। जो बच्चे थे वो भूख के मारे बेचारे तड़प रहे थे, कचरे के डब्बे में खाना ढूंढ रहे थे। From there, it was but a step to fighting with the dogs for a share of the garbage. But this also became a familiar sight in the Calcutta streets. और यहां तक कि एक जो पशु है, कुत्ता है, उसके मुंह में से भी खाना छीन कर खाने की नौबत आ गई थी। इस तरह की हालत उस समय हो रही थी। और ये कहाँ की बात है? कलकत्ता की। The British had little time to spare from their war efforts, and they worked only to save those lives essential for the fight. For the common people, the empire's prescription was uniform and simple: starvation. तो अब ये जो ब्रिटिश लोग थे उनको खाली किन लोगों से मतलब था? जो उनके लिए लड़ रहे हैं युद्ध में। बाकी जो लोग हैं साधारण, जो लड़ाई वड़ाई भी कुछ नहीं कर सकते, उनका सीधा सा उनके लिए क्या प्रेस्क्रिप्शन था कि वे भूखे मरे। Srila Prabhupada. One American gentleman was present at that time. He remarked, people are starving in this way. In our country, there would have been revolution.
Yes, but the people of India are so trained that in spite of artificial famine, they did not commit theft, stealing others' property. People were dying. Still, they thought, all right, God has given. That was the basic principle of Vedic civilization. कितनी सुंदर शिक्षा है देखिए यहाँ। एक अमेरिकन कोई व्यक्ति थे वहां पर उस टाइम पर, तो उन्होंने एक चीज क्या नोटिस की वहां पर, कि लोग यहाँ पर भूख से बेचारे भूख में है, और यहाँ हमारी कंट्री में रिवॉल्यूशन चल रहा है। रिवॉल्यूशन समझे ना, इस तरह से क्रांति वगैरह हो रही है। लेकिन यहाँ पे भारत के जो लोग हैं ये इतने ट्रेंड है कि यहाँ पर ये अकाल वगैरह छाया हुआ है, खाने को नहीं मिल रहा लोगों को। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बाहर दूसरों के घरों में चोरी चकारी कर रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं है। लोग मर रहे हैं लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कोई बात नहीं, भगवान भगवान ये भगवान अब ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही ठीक। सो दिस दैट वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। क्या कहते हैं, जैसे कृष्ण रखे, जैसे कृष्ण शिला, क्या कहते हैं, शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी भी एक बंगाल में बोलते लाइन, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। कि भगवान की इच्छा है, भगवान ही रख पालन करने वाले, भगवान ही मारने वाले। अब he knew that under the laws of nature there was no scarcity. By God's arrangement, the earth could produce enough food. The trouble was man's greed. There is no scarcity in there is no scarcity in the world. Srila Bhaktivedanta Saraswati had said the only scarcity is of Krishna consciousness. तो अभय ये जान रहे थे कि प्रकृति के द्वारा कोई भी अकाल नहीं है, भगवान के व्यवस्था से जो पृथ्वी है वो ऑलरेडी ही पर्याप्त भोजन प्रदान कर रही है। लेकिन यहाँ पर कठिनाई क्या है, लोगों का लालच। अब यहाँ गवर्नमेंट ही इस तरह से जो भी अनाज वगैरह है वो इस तरह से स्टोर करके रख रही है, जनता को नहीं दे रही है। भगवान की तरफ से तो कुछ भी कमी नहीं है ना। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी खुद कहते हैं कि जगत में कोई भी स्केर्सिटी नहीं है, कोई अकाल वगैरह नहीं, किसी चीज की कमी नहीं है। एकमात्र जो कमी है वह है कृष्ण भावना मृत की, कि व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, और इस वजह से वह इस तरह के काम करता है। जैसे आज हमारे घर में कोई व्यक्ति आए थे, तो मैं ट्राई कर रही थी उनको कुछ, एक तो देखिए गड़बड़ क्या है पता नहीं, यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, बोलना नहीं चाहिए, बाद में बताऊंगी। पर हाँ, मैं ट्राई कर रही थी कि उनको कुछ मैं बताऊं भगवान के विषय में, और ऐसा नहीं वो पहली बार घर में आए, आते रहते हो, पर ज्यादा मैं कुछ बात करती नहीं हूँ। पर आज मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं। सो आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू रीड बुक्स, प्रभुपाद बुक्स। सो आई गेव हिम द बुक, मैंने दी भी उनको पुस्तक, बोला है उन्होंने पढ़ूंगा मैं। लेकिन मतलब आप देखेंगे, आप किसी भी भौतिकतावादी व्यक्ति से अगर बात करेंगे तो आपको उसकी पूरी हिस्ट्री पता लग जाएगी। हिस्ट्री मतलब समझ रहे हैं कि उसकी मति कहाँ तक अटकी हुई है। तो उन व्यक्ति की जो मति है वो मैं एकदम समझ गई कि वो कहाँ अटकी हुई थी, और वो समझ ही नहीं सकते। सच में कोई भी सामान्य भौतिकतावादी कभी समझ ही नहीं सकता कि एक भक्त जो भक्ति कर रहा है वो क्या अनुभव कर रहा है। कभी भी एक सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति इस बात को समझ ही नहीं सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। उसकी नजर में एक जो भक्त है वो हमेशा एक मूर्ख ही होगा, कि अरे इनको लाइफ एंजॉय करना नहीं आता है बेचारों को, इस वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ के बस हरे कृष्णा करते रहते हैं।
दे कैन नेवर अंडरस्टैंड। गलती उनकी भी नहीं है, भगवान बुद्धि नहीं दे रहे ऐसी। बट एनीवेज वो आए थे तो क्या बोले अब, बस यही बात है, द ओनली स्केर्सिटीज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और व्यक्ति जहां पर भी अपनी एनर्जी और एफर्ट्स लगा रहा है कि मैं ये करके सुखी हो जाऊंगा, वो करके सुखी हो जाऊंगा, बस ये एक छलावा मात्र है। And this was how Abhay saw the 1943 famine. Now, more than ever, this spiritual vision was relevant. Krishna consciousness was the prime necessity. तो देखिए, पहले ही भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बोला था प्रभुपाद जी को, अभय को, that Krishna consciousness is the prime necessity. अबे सोच रहे थे ना इस तरह से कि मुख्य चीज है कि भारत स्वतंत्र हो, तब जाकर कुछ भगवान की भक्ति करेगा ना। नहीं, भगवान का भक्त बनेगा तब वास्तव में स्वतंत्र होगा। जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होगा, वो कभी भी सेल्फलेस तो बन ही नहीं सकता है। हमेशा अपनी इंद्रियां उसकी कैसे तुष्ट हो, इस प्लानिंग के इस प्लानिंग के बाहर वो कुछ प्लानिंग कभी कर ही नहीं सकता है। दिस इज फॉर श्योर। तो अब अभय इस चीज को वापस वास्तव में देख रहे थे कि वास्तव में कृष्ण भावनामृत ही एकमात्र आवश्यकता है व्यक्ति की। How else could man be checked from his evil propensities to become greedy, hoard, make war, and thus create misery for millions? नहीं तो व्यक्ति इस तरह का कैसे एक दानव हो सकता है कि इस तरह का लालच करे और इस तरह से वो युद्ध करे, और ऐसे बहुत सारे जो इनोसेंट लोग हैं उनके लिए इस तरह से वो एक नर्क का जीवन बना दे, जिस तरह से यहाँ कलकत्ता में हालत हो रही थी, बेचारे लोग भूख से मर रहे थे। Okay, now we will be continuing the discussion tomorrow. Krishna's desires. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.